કંપનીના અધિકારીઓ આવી ચૂક્યા છે, જેમનું સ્વાગત હિમાંશુભાઈ સાહેબ કરશે. સૌથી પહેલાં રાજીવ સાહેબ આવે છે, તેમનું સ્વાગત હિમાંશુભાઈ સાહેબ કરી રહ્યા છે. પિયુષ કૌશિક સાહેબ આવે છે, તેમનું સ્વાગત હિમાંશુભાઈ કરી રહ્યા છે. અને આપ જોઈ રહ્યા છો કે આજે રાધિકા ટ્રેક્ટરની અંદર ફંક્શન રાખેલું છે, જેની અંદર મહિન્દ્રા કંપનીના ઉચ્ચ અધિકારીઓ આવેલા છે. વર્કશોપનું ઉદ્ઘાટન છે તથા એક લકી ડ્રો ઇનામ વ્યવસ્થા પણ રાખી છે, જેનું આજે લકી ડ્રો પણ કરવાના છે. તો ચલો જોઈએ શોરૂમની મુલાકાત અને શોરૂમની અંદર શું શું ફેસિલિટી કરી છે. તો સાહેબને શોરૂમની મુલાકાત કરાવી છે. શોરૂમનું રિનોવેશન કર્યું છે. રાધિકા ટ્રેક્ટર મોટા ચિલોડા ગાંધીનગર, જે હિંમતનગર હાઈવે ઉપર શોરૂમ આવે છે. અને મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટરનું ખૂબ જ સારું વેચાણ થઈ રહી છે શોરૂમ. સાહેબને દરેક વસ્તુ બતાવી રહ્યા છે તથા આ શોરૂમની અંદર કૃષિના લગતા પણ કામકાજ થાય છે, અને જેમાં ખેડૂતોને માટીનું પરીક્ષણ કરવું હોય તે પણ અહીંયા થાય છે, જેનું તેમાંની મેમ માહિતી આપી રહ્યા છે. साधु साहब जनरल मैनेजर महिंद्रा लिमिटेड गुजरात, मुख्य मेहमान तरीके जिनको उपस्थित है श्री पीयूष कौशिक साहब. साधु साहब આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે શ્રી નિખિલ અરોરા સાહેબ, શ્રી ડીસી કદમ સાહેબ, શ્રી વૈભવ શ્રીવાસ્તવ સાહેબ અને ચોક્કસ આપણા ડીલર શ્રી હિમાંશુભાઈ પટેલ, જેઓને લઈને આપણા આધુનિક વર્કશોપનું ઉદ્ઘાટન અત્યારે કરી રહ્યા છે. આ અધિકારીશ્રીઓ શ્રી ભારતેન્દુ કપૂર સાહેબ, શ્રી પિયુષ કૌશિક સાહેબ, શ્રી નિખિલ અરોરા સાહેબ અને વૈભવ શ્રીવાસ્તવ સાહેબ તેમજ ડીલર સાહેબ એ આપણા અદ્યતન વર્કશોપનું ઉદ્ઘાટન રિબિન કટિંગ કરીને ત્યાં કરી રહ્યા છે. આપણે તાળીના કારણ કે અધિકારીશ્રીઓ ઉદ્ઘાટન કરે છે એ વર્કશોપનો લાભ આપણે સૌ લેવાના છીએ. હું તો એમ કહું ત્યારે કોઈ ટ્રેક્ટર બગડે નહીં. ડૉક્ટર કોઈ દિવસ એવું ના ઈચ્છતા હોય કે કોઈ માંગો કરે મારેથી આવે, કોઈ ડૉક્ટરના દવાખાનામાં વૈષ્ણવ સંગઠન એવી જ લાગણી અમારી છે. પણ હા, આનું ભણતર મળવા નથી ત્યારે એક વસ્તુ આવી છે. એમ અમે આ વર્કશોપ એટલા માટે ખોલીએ છીએ કે આનું ટ્રેક્ટર બીમાર ન પડે, પણ પડે તો પહોંચાતા નહીં અમે બેઠા છે. ત્યાં અધિકારીશ્રીઓ મગજ પ્રજનન કરી અને આપણા કાર્યક્રમને આગળ વધારી રહ્યા છે. सम्माननीय श्री भारतेंदु कपूर साहब, श्री पीयूष कौशिक साहब, श्रीवास्तव साहब, श्री संजीत कुमार साहब, हिमांशुभाई पटेल,
सभी मिलकर मंगल दीप प्रज्वलन करके गजानन महाराज के चरणों में मंगल दीप प्रज्वलन करने के लिए सभी आगे बढ़ रहे हैं और आज के कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है। આમ તો અમારી ઈચ્છા છે કે દરેક ખેડૂત મિત્રોને અમે આમાં સામેલ કરીએ, પણ તમારા પ્રતિનિધિ સ્વરૂપે એકાદ બે ખેડૂત મિત્રોને બોલાવી રહ્યા છે। જીવણભાઈ ચૌધરી, આપને વિનંતી કે સૌ ખેડૂત મિત્રોના પ્રતિનિધિ તરીકે આપ સાથ આપશો। શ્રી મગનજી કાનાજી, આપને પણ વિનંતી કે આપ પણ આ દીપ પ્રજ્વલનમાં। श्री महेंद्र भाई रावल, आप पण दीप प्रागट्य में जोड़ाए ने तमाम खेडूत मित्रों प्रतिनिधित्व करी रहा छे। आ खेडूत मित्रों सुरेंद्र सिंह धड़पथी आवेला सुरेंद्र सिंह, आपने पण विनंती कि आप पण आ मंगल दीप प्रज्वलन में खेडूत मित्रों प्रतिनिधि तरीके जोड़ाओ ने आप सौ त्यां बेसी। सुरेश भाई प्रजापति, आपने पण विनंती कि मंगल दीप प्रज्वलन में आपने साथ आपशो। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रिया लंबोदराय शकलाय जगद्दया नागान नहाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्तु। गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्तु। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कलारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं दिए की छोटी सी लो बरसों से छाए अंधकार को कर देती है जोजनो दूर। ऐसा ही ये मंगल दीप प्रज्वलित कर रहे हैं हमारे अधिकारी श्री और किसान दोस्त। फिर से एक बार जोरदार तालियों की गूंज हो जाए। सभी किसानों को ढेर सारी शुभकामना और मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने साथ दिया हमें इस दीप प्रज्वलन को। सभी मेहमान को गुजारिश के मंच पर आए। सम्मानीय वाइस प्रेसिडेंट सर एंड कस्टमर्स के महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड मुंबई श्री भारतेंदु कपूर साहब, आपको गुजारिश के मंच पर पधारे। सम्मानीय श्री जनरल मैनेजर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड श्री पीयूष कौशिक साहब, आपको भी गुजारिश है। श्री निखिल अरोड़ा साहब, आपको भी दिल से गुजारिश है, कृपया आप मंच पर पधारे। श्री निखिल अरोड़ा साहब, श्री वैभव वास्तव साहब, आपको भी दिल से गुजारिश है कि मंच पर आए। सम्माननीय श्री असिस्टेंट एरिया मैनेजर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड संजीत कुमार साहब, आपको भी गुजारिश है कि कृपया आप मंच पर आकर मंच को सुशोभित करें। सभी मेहमान का मंच पर स्वागत है, अभिवादन है। मित्रों, फरी एक बार आप सब जाणो छो कि આજનો દિવસ એટલે અદ્યતન સર્વિસ સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન, ડિલિવરી ફંક્શન અને પોટેટો બિયારણની માહિતી। આ ત્રિવિધ સંગમ એટલે રાધિકા ટ્રેક્ટર્સના આંગણે એક અનોખી દુનિયા। 15 હોર્સ પાવર થી લઈને 75 હોર્સ પાવર સુધીના ટ્રેક્ટરની દુનિયા એટલે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા। भूमिपुत्र, युवराज, सरपंच अने अर्जुन जेवा अनेक मॉडलोनी दुनिया एटले महिंद्रा एंड महिंद्रा। 1800 थी वधारे संतुष्ट ग्राहक जेनी पासे छे एवा राधिका ट्रेक्टर्स 2007 थी गांधीनगर अने देगाम तालुको संभाળી રહ્યું છે અને ઘર આંગણે સર્વિસ અને મહિન્દ્રા સમૃદ્ધિનો સથવારો
એ રાધિકા ટ્રેક્ટર્સને આંગણે છે। 5 મિનિટમાં એક ટ્રેક્ટર બની અને બહાર આવતું હોય અને 85 થી વધારે કોમ્પ્યુટરાઇઝ ટેસ્ટમાંથી પસાર થઈને જે ટ્રેક્ટર તમારા સુધી પહોંચતું હોય એવું ટ્રેક્ટર એટલે મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર। બોમ્બે, જયપુર, રુદ્રપુર, નાગપુર અને છેલ્લા 2 મહિનાથી જહેરાબાદમાં 5મો પ્લાન્ટ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે। રાજકોટમાં 215 યુવરાજ મિની ટ્રેક્ટરનો પ્લાન્ટ જ્યાં છે। જેબાર પ્લાન્ટ એટલે કે સમગ્ર પ્લાન્ટ એસી કે ન ધૂળ ન ડસ્ટ એન્જિનમાં જાય એવો પ્લાન્ટ અને આધુનિકમાં આધુનિક ગાડીઓમાં જે ટેકનિકથી કલર કરવામાં આવે છે એવા સીઈડી પેઇન્ટ પદ્ધતિ દ્વારા જે ટ્રેક્ટરમાં પેઇન્ટ થતું હોય એવું લાલ લાલ સનેડો એટલે તમારું પોતાનું મહિન્દ્રા। અહીંયા कभी हम उनको कभी हमारी तकदीर को देखा करते हैं અને જો ગુજરાતની ભાષામાં કેવું હોય તો જેની જોતાતા અમે વાટ એવા સાજન અમને સામા મળ્યા પછી ઉઘડા હૈયાના દ્વાર અને કૂચી તણા નૌકા પડ્યા। સૌનો હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે, અભિવાદન છે। यहाँ कहते ये है कि आने वाले मेहमान को अगर कुछ न कह पाए सिर्फ एक गुलाब का फूल दे दिया समझने वाला समझ लेगा कि स्वागत करने वाले ने अपना दिल हमारे हाथों में दे दिया। ऐसा दिल से स्वागत है, अभिवादन है। और शायद गुलाब कुछ न कह पाए तो हम गुजारिश करेंगे हमारे डीलर यहाँ सर ये तो जरूरी है कि महिंद्रा के शायद सबसे यंग डीलर है, सबसे यंग है, सबसे मेहनतू है और सबसे किसानों में प्यार जिसका है। ऐसे हिमांशु भाई पटेल को गुजारिश है कि सभी मेहमान का मंचस्थ मेहमान का किसानों का शाब्दिक स्वागत करें। हिमांशु भाई पटेल। નમસ્કાર। આજે આપણા આમંત્રણને માન આપી ભાર્ગેન્દ્ર કપૂર સાહેબ, પિયુષ કૌશિક સાહેબ, મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સમાંથી રાકેશ રાઠોડ સાહેબ, કોટક મહિન્દ્રા બેંકમાંથી જસ્મીન સાહેબ, આ બધા સાહેબ લોકોનું હું આ તકે રાધિકા ટ્રેક્ટરના વર્કશોપના ઓપનિંગમાં આવકારું છું। સાથે સાથે આપ સર્વે રોજથી રોજ મારી સાથે જોડાયેલા કસ્ટમરો તથા મિત્રો આજે તમે આ હાજરી આપી, આજે આ વર્કશોપના ઉદ્ઘાટનમાં આપણે હાજરી આપી છે એ બદલ હું તમને ખૂબ ખૂબ આવકારું છું। हिमांशु भाई की खासियत है कि बातें कम काम ज्यादा। जो कस्टमर हामो बैठो हो अने एक कोई नमस्कार आदरणीय श्री कपूर साहेब, राधिका ट्रैक्टर्स से डीलर श्री हिमांशु साहेब, महिंद्रा फाइनेंस से राकेश साहेब, कोटक बैंक से जैस्मिन साहेब, आप सभी यहाँ पे उपस्थित आदरणीय सम्माननीय हमारे परिवारजन, हमारे किसानगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। हम अहमदाबाद से मात्र आधे घंटे की दूरी पे हैं, पर ऐसा लगता है सारा जो गुजरात का समूह है, गुजरात की जो जन्मभूमि का जो निचोड़ है जो साहब ने बताया वो हमारे सामने उपस्थित है। गुजरात के बारे में न तो हिंदुस्तान में लोगों को कम जानकारी है, न तो विश्व में कोई कम जानकारी है। गुजरात हिंदुस्तान में सभी जगह न केवल खेती में पर औद्योगिक जगत में, न केवल पॉलिटिक्स में बल्कि उन्नति में सभी ટૂંકમાં ઘણો આપણે શું આમ તમે જુઓ તો એક સાંકળ છે। ખેડૂત મિત્ર જેટલો સમૃદ્ધ થશે એટલી એની ખેતી માટેની ટ્રેક્ટરની જરૂરિયાત વધશે। તમે સમૃદ્ધ થયા, તમારી જરૂરિયાત વધી, તમે રાધિકા ટ્રેક્ટર્સે આવવાના છો। તમારી માંગણી વધી એટલે હિમાંશુભાઈ કંપની પાસે જશે અને કંપની પાસે જશે એટલે કંપની પણ પ્રોડક્શન વધારશે। એકની સાથે બીજો જોડાયેલો છે અને जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। उसी का विचार, उनकी बातें को हम सुनेंगे।
गांधीनगर आसपास के आए हुए सभी किसान भाई, राधिका ट्रैक्टर से हिमांशु जी और उनका परिवार और मेरे साथ आए हुए सभी कलीग्स, मैं सबका एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सुनने के लिए हमको यहाँ पे आए हैं। मैं 10 मिनट का समय लूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको महिंद्रा कंपनी के बारे में कुछ बताऊँ और हम लोग किस तरह से काम करते हैं उसकी जानकारी थोड़ी सी आपको दूँ, और हमारी आने वाले समय के लिए इच्छा क्या है, किस तरह से हम इस देश के किसानों के बारे में सोचते हैं या किस तरह से हम अपनी कंपनी को आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में आपको कुछ बताऊँ। सन 1943 आज़ादी से करीब 4 साल पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा की शुरुआत हुई और एक साल में, पहले साल में हमको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उस समय कोई भी उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। और 1944 में पहली बार हमने मात्र 30 जीप के निर्माण से, पूरे साल भर में हमने 30 जीप बनाए और 30 जीप के निर्माण से इस कंपनी की शुरुआत हुई। और आज इस कंपनी के 119 अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग क्षेत्र में। हम कृषि के क्षेत्र में या ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में या आईटी के क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में, अपना पावर के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में, और बोट्स जो बनती हैं, पानी में जो चलती हैं बोट्स, उसमें, या फिर हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में, होटल्स का जो उद्योग होता है उस क्षेत्र में अलग अलग महिंद्रा समूह की अभी 119 कंपनीज हैं। और महिंद्रा ग्रुप का आगे जाने का कारण सिर्फ एक ही रहा है कि हमारे कस्टमर्स, जिस भी क्षेत्र में हम लोग आए हैं उस क्षेत्र में हमारे कस्टमर्स ने हमारा सहयोग दिया है और कस्टमर्स हमारे साथ में रहे हैं। कृषि जगत में हमारा आना हुआ 1976 में। सन 1976 में हमने ट्रैक्टर निर्माण में अपना कार्य शुरू किया, और जब 1976 में हमने ट्रैक्टर निर्माण शुरू किया तो पहला जो ट्रैक्टर था वो इंग्लैंड की एक कंपनी है, इंटरनेशनल हार्वेस्टर, उसके साथ में महिंद्रा समूह का एक करार हुआ और पहला ट्रैक्टर तब हिंदुस्तान में हमने लेकर के आए और उसको इंटरनेशनल हार्वेस्टर IH करके वो ट्रैक्टर बनता था और उसको वोल्टास जो हैं वो सेल किया करते थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा उसको बनाता था उस ट्रैक्टर को। और मुझे ये आपके साथ में शेयर करते हुए, आपके साथ में इस बात को बांटते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि तब से लेकर के और अब तकरीबन 15 दिन पहले जो 20 लाखवां ट्रैक्टर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने बनाया, कांदीवली प्लांट में, हमारे बॉम्बे में कांदीवली एक जगह है, वहां पे जो हमने ट्रैक्टर बनाया, 20 लाखवां ट्रैक्टर हमने इंग्लैंड को एक्सपोर्ट किया। पहला ट्रैक्टर हम लेकर के आए थे और 20 लाखवां ट्रैक्टर अब हम इस क्षेत्र में इस आगे तक पहुंच गए हैं कि अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज महिंद्रा समूह में 37 देश ऐसे हैं जहां पे महिंद्रा समूह की प्रेजेंस है अलग अलग तरह से, और उसमें से जॉर्जिया में जो हमारा प्लांट है, यहाँ पे हम ट्रैक्टर बनाते हैं और वहाँ पे उसको CKD किट बेचते हैं और वहाँ पे असेंबल करके उन देशों में अब हम वही महिंद्रा ट्रैक्टर जो यहाँ बेचते हैं वही उन देशों में भी हम लोग सेल करते हैं। हमारे मैनेजमेंट का हमारे लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, किसी भी क्षेत्र में आप काम करो, तो वहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनसे जानकारी लो कि उनको चाहिए क्या है, उनकी खुशहाली के लिए आप काम करो। अगर उनके घर में खुशहाली आएगी तो आपका उद्योग अपने आप बढ़ता जाएगा। तो कृषि जगत में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हमारा, जितने हमारे फील्ड टीम है या जितने हमारे साथ जुड़े हुए हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, डीलर्स हैं, उनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन रहती है कि जानकारी रखिए कि कस्टमर को चाहिए क्या और उसके लिए हम लोग काम करें। तो अगर हमारे पास में फीडबैक आती है कि कस्टमर के घर में खुशहाली लाने के लिए उसके पास में बचत ज़्यादा होनी चाहिए, तो बचत ज़्यादा कैसे होगी कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट से उसकी उत्पादक क्षमता जो है, उसके खेत की जो उत्पादक क्षमता है वो बढ़नी चाहिए।
उसमें जो मेंटेनेंस है वो कम होना चाहिए, उसमें जो इस्तेमाल होने वाला ईंधन है, ईंधन की खपत जो है वो सबसे कम होनी चाहिए। तो जब भी हम अपना नया प्रोडक्ट लेकर के आते हैं तो हम लोग ये ख्याल रखते हैं कि उस प्रोडक्ट को उस क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हम लेकर के जा रहे हैं, उसमें वो सहयोग करे हमारे कस्टमर्स का, हमारे ग्राहकों का, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी, यील्ड वो सबसे अधिक हो, ईंधन की खपत सबसे कम हो। तो इस तरह का प्रोडक्ट हो जो कि उस मार्केट में जाए। उसके अलावा हमारे डीलर से हमको समय समय पर आपके माध्यम से जो भी आप फीडबैक हमारे डीलर्स को देते हैं वो हमारे तक पहुंचता है। तो जो भी हम नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं वो सब फीडबैक ध्यान में रखते हुए हमारे इंजीनियर्स डेवलप करते हैं, ताकि हमारे कस्टमर्स का सहयोग हमको मिलता रहे। गुजरात एक, मैं कहूँगा, इनोवेटिव जगह है जहाँ से कि कई तरह के फीडबैक्स हमको मिलते हैं। आज से करीब 8 साल पहले, 7 साल पहले हमारे पास में फीडबैक आया कि ट्रैक्टर जो है वो बहुत महंगा हो गया है और कई बार उतनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती है जो किसान इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पाते हैं क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी को, इस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए कोई चीज़ सस्ता होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए ताकि उनका काम जो है वो पूरा हो जाए। उनके पास छोटे खेत हैं तो उनके लिए छोटा ट्रैक्टर बनाया जाए। तो उस वजह से हमने युवराज यहाँ पर लेकर के आए और आज युवराज जो है आप ही के क्षेत्र में, राजकोट के पास में एक जगह है, वहाँ पे युवराज का निर्माण होता है जो कि हम पूरे देश में और विदेश में उसको सेल करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के कृषि जगत के लिए हमारे जो ट्रैक्टर प्लांट हैं, 8 प्लांट हैं टोटल। और पिछले हफ्ता भर पहले हमने आंध्र प्रदेश में एक जगह है जहीराबाद, वहाँ पे एक और प्लांट का, 9वें प्लांट का एक शुरुआत किया जिसकी क्षमता है 1 लाख ट्रैक्टर की। और एशिया भर में वो जो ट्रैक्टर प्लांट है पूरे एशिया में सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्लांट है, जिसमें साल भर में 1 लाख ट्रैक्टर सिर्फ एक ही प्लांट में बनेंगे। तो कुल मिला जुला करके पिछले जो 30 साल का हमारा सफर रहा है नंबर 1 रहने का, या पिछले 37 साल का जो हमारा सफर रहा है इस कृषि जगत में अपना आने का, उस क्षेत्र में आप सबका सहयोग हमारे साथ में रहा है और उसका ये नतीजा रहा है कि हम हिंदुस्तान में 7 जगह पे अपने अलग अलग प्लांट लगा पाए हैं। विश्व में 37 अलग अलग ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारी प्रेजेंस है और आप सबका ये सहयोग हमको मिलता रहेगा, इसकी मैं अपेक्षा रखता हूँ। आप सब जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं या आज जो भी कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, मैं कामना करता हूं कि वो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, उनके घर में और खुशहाली आएगी और कस्टमर्स वो हमारे साथ में लेकर के आएंगे और हमारे साथ में हमारे साथ में वो उनकी भी तरक्की होगी। हमारे चैनल पार्टनर्स हिमांशु जी जो हैं, उन्होंने यहाँ पे ये उद्योग शुरू किया था 2006 में, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में इन्होंने मुझे बताया 2002 से ये जुड़े हुए हैं। और आप भी हमारे साथ में इस क्षेत्र में जब आप आ ही गए हैं तो इस क्षेत्र के किसानों के लिए आप उनकी खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे हमेशा के लिए। आप और आपके परिवार को और आपके सारे डीलरशिप और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और किसानों का ध्यान रखते हुए आपने ये निर्णय लिया कि जो पहले हमारा वर्कशॉप था वो थोड़ा दूर था, सबको थोड़ी दिक्कत होती थी, आज आपने ये निर्णय लिया कि वर्कशॉप यहीं पे हो जाए, तो ताकि सर्विस भी यहीं पे मिल जाए और सारा चीज़ जो है एक छत के अंदर सबको हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबका एक बार से यहाँ पे आने के लिए, हमको सुनने के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप सबका सहयोग आने वाले समय में हमको इसी तरह से मिलता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार खेडूत मित्रों, અને વેલકમ ટુ મિસ્ટર બીકે સાહેબ, કૌશિક સાહેબ, જસ્મીન જી એન્ડ સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ હિમાંશુભાઈ કે જેમણે આજે એક આયોજન કરેલું છે અને એમના પોતાના વર્કશોપના ઉદ્ઘાટન માટે ઓલ ઇન્ડિયા હેડ વીપી સેલ્સ એન્ડ કસ્ટમર કેર
બીકે સાહેબને આમંત્રણ આપીને આપને એક લાવો આપ્યો છે આ માણવાનો કે જેના થ્રુ આપણે ઘણું બધું એવું ફિગર્સ માહિતી નોલેજ કે જે આજે આપણને શેર કર્યું છે સિનિયર્સએ. આ વર્કશોપના ઉદ્ઘાટન નિમિત્તે ખાલી એટલું જ કહીશ કે સેલ્સ સાથે જો સર્વિસ ના હોય તો સેલ્સનો કોઈ મતલબ નથી. અને એ એમણે મહેસૂસ કર્યું કે ભાઈ મારે જે કસ્ટમર આવે છે અહીંયા એ કસ્ટમરને જાતે જ હેન્ડલ કરવા જોઈએ અને પર્સનલી મળવું જોઈએ. તો ડેફિનેટલી આ એમનો જે વિચાર છે એના ભવિષ્યમાં એમના પ્રગતિ તરફ દોરી રહ્યો છે. અને આજે સવારે જ એમણે મને એક એક્ઝામ્પલ શેર કર્યું કે એક કસ્ટમર હતા જેમણે માત્ર સર્વિસ માટે આવેલા હતા અને સર્વિસની સાથે સાથે જસ્ટ વાતચીત થતાં એવું જાણવા મળ્યું કે એમને નવા ટ્રેક્ટર લેવામાં બી ઇન્ટરેસ્ટ હતો અને ઇમિડિયેટલી ઓન ધ સ્પોટ એમને ડિસિઝન લીધું કસ્ટમરે કે ભાઈ ચલો મારે આને એક્સચેન્જ કરી આપવું છે. અને એક્સચેન્જ કરવાની સાથે જ એમને બી લાભ મળ્યો અને કસ્ટમરને બી લાભ મળ્યો. કદાચ એવું બને કે આ સર્વિસ સ્ટેશન કદાચ અલગ હોત તો આ મોકો કસ્ટમરને બી ના મળ્યો હોત અને ના તો ડીલરને બી મળ્યો હોત. આ એક ટ્રેક્ટર વેચવાનો અને એક ટ્રેક્ટર ખરીદવાનો. તો ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે કે જેમણે પોતાના વિચારોને અમલમાં મૂકીને એક કસ્ટમરને સંતોષ આપવા માટેનું એક નવું પદાર્પણ કર્યું છે. આની સાથે સાથે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ગ્રુપ માટે જે બીકે સાહેબે જે માહિતી આપી કે 37 દેશોમાં પ્રેઝન્સ છે અને પિનથી માંડીને હવાઈ જહાજ સુધી બનાવે છે, પણ આ બધું જ ખરીદવા અને લેવા માટે જેમ આપણને કીધું વક્તાએ કે પૈસો મારો પરમેશ્વર, પૈસો મારો દાસ, અને એ પ્રમાણેની જે ઉક્તિઓ એમણે કરી કે પૈસા માટે, તો આ બધી જ વસ્તુને ખરીદવા માટે મની ઇઝ રિક્વાયર્ડ. અને મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સનું જે નમસ્કાર. અત્રે ઉપસ્થિત ખેડૂત મિત્રો, કપૂર સાહેબ, કૌશિક સર, હિમાંશુભાઈ અને રાકેશભાઈ, મિત્રો આપ સૌનો કોટક બેંક વતી અને રાધિકા ટ્રેક્ટર્સના આ વર્કશોપના ઉદ્ઘાટન નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. મિત્રો બહુ સમય નહીં લેતા થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડ, થોડીક હિસ્ટ્રી પાછળ જઈએ કે કોટક બેંકનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી થયો, હાલમાં જેમાં ભારતીય રિઝર્વ બેંકે કોટક બેંક એક ફર્સ્ટ એવી ફાઇનાન્સ કંપની હતી જેને બેન્કિંગ લાયસન્સ આપેલું હતું, જે હિન્દુસ્તાનની આઝાદીની હિસ્ટ્રીમાં ક્યારેય નહોતું થયું. જેમ આપણે કહીએ છીએ અમે બેસિકલી કોટક બેંક જે છે ગુજરાતી પ્રમોટર્સની બેંક છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જ્યારે બેંક તરીકે એક નિર્માણ થયું, બેન્કિંગ ઓપરેશન્સ મળ્યું, અમે લોકોએ શરૂઆત કરી. તો જ્યારે 2003માં બેંકનું નિર્માણ થયું એ વખતે સૌ પ્રથમ ગુજરાતને એક મોડલ સ્ટેટ તરીકે જોવામાં આવ્યું. મિત્રો લગભગ 10-12 વર્ષ પહેલા એવું કહેવાતું હતું કે ટ્રેક્ટર ઉપર ધિરાણ કરવું કે કોઈ પણ કૃષિલક્ષી ધિરાણ કરવું એટલે એમાં પૈસા ટાઈમસર ના આવે, અને કોઈ પણ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક હોય, શેડ્યુલ બેંક હોય, એમાં જ્યાં જઈએ ત્યાં એવું સાંભળવા મળે કે પૈસા નહીં આવે, તમારે ડિફોલ્ટ થશે, લોસીસ બહુ આવશે. મિત્રો અમારું માનવું થોડું અલગ હતું. અમારું માનવું એવું હતું કે આ એક કૃષિ ક્ષેત્ર એવું છે